बैच में कर लो ना, वैसे भी सोमेरा बैच में रिकॉर्ड करो। हाय चलो साइलेंस ना। अरे खुशी, हाय खुशी, आइसोलेट। अरे हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल। सब आपको पहले ही बोला। उसमें क्या है, थोड़ा लोग ज्यादा है ना, तो ये बैठने में साइलेंस साइलेंस। चलो टेक आउट सम नंबर 10। इसके साथ ही है। See sum number 10, very important sum. Two very important adjustments we are going to do today. Problem number 10. Take out that. We're together with them. We're with them only. ये क्लास में Bring only math. Ben What time is the lecture? So late. Go early ना, पहले क्लास के बाद संभाल के जाए। मेरे बीच किया ना, मैं आई थी। और आपसे तो चलो listen. All of you take sum number 10, page number 120. Please mark it down. सर अभी 3 पेज वाले समझाएगा ना, मतलब नोटबुक में 3 पेजेस लगेंगे वैसे हो कॉलेज में 3 पेज वाले 3 पेज में करा। साइज तुम्हारा एनआईटी का बड़ा है। Listen now. Quiet. Pay attention. Sum number 10. Shubham Traders. Silence. Last benches. Please be quiet. Take sum number 10. Quiet now. Very important sum, two very important adjustments we are going to do. Silence. Last bench. Tell me land and building, Tanisha. Assets. Mark it down fast. Prior debtors. Machinery. Heat purchases. Then our stock on 1406. Which stock is that? So, TD. Wages. TD. The back side. You got factory expenses. Factory expenses कहाँ जाएगा? TD. Royalties, Dhruv. TD. What are royalties? Remember, when you use a brand name or use some kind of special asset or technological know-how, you don't buy it. Intangible asset आपने खरीदा नहीं है, उसको use कर रहे हो और उसका पैसा दे रहे हो, okay? तो हर महीने हर प्रोडक्ट पे परचेज के वक्त आपको देना पड़ेगा. That is royalty. So it is always inwards if nothing is specified. So that is trading debit. 3 carriage inwards. TD. Very good. Palav, carriage outwards. Very good. Interest on bank loan. Vedika. Perfect. Bad debts. P&L debt. Furniture. Assets. Drawings. Subtract from capital. Cash in bank. Asset. Cash in hand. Asset. Advertisement. Very good. Advertisement is P&L debit. Insurance. P&L debit. The credit side. Okay. Creditors are Salary creditors. liability. There are reserve for doubtful debts. Minus from P&L debits. Please mark fast. Unpaid wages.
liability. What are unpaid wages? Outstanding. But here, are they appearing in adjustment or in trial balance? Since they are in trial balance, it means it has been already recorded. Wages to outstanding wages. ये entry already pass हो चुका है. Wages में already debit हो चुका है, मतलब add हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं. सिर्फ liability. Sales, TC. Discount. Very good. P&L credit. Capital liability. The last item, 15%, 12% bank loan, that is liability. 12% bank loan, that is liability, but there is a percentage sign that indicates there is. What are you supposed to do with that? CCC. Remember? Calculate, check and compare. Closing stock at the end was 18,000. Put out 2 effects. ATC, trading credit and assets. Is that clear? Veda, goods worth 3,000 are taken over by Shubham for his domestic use. Capital में से minus and trading credit. Capital में से minus because it is drawings and trading credit. Purchase में से minus करने के बदले trading credit. All of you got that? बहुत बढ़िया. Goods of 1,500 is distributed as free sample. Samiksha. Trading credit and P&L debit. Trading credit and P&L debit. Got it? Advertisement to purchase. Hello. Advertisement to purchase is the entry. Advertisement is P&L debit and purchase में से minus करने वाली trading credit. Very good. Write off 1,000 as bad debts and create a bad debts reserve on debtors of 5%. What are these two items, Ishika? Very good. FBD का 2 effects. दोनों का 2 effects same. Less from debtors and add to bad debts. P&L debit add to bad debts and less from debtors. Is that clear? Hello. All of you got that? FBD and NRDD? Sorted? सब लोग साथ में कर रहे हो ना मार्क? ध्यान से अभी. Don't talk. Insurance is paid for the year ended 30th September 07. Kashish, what is this? Very good. And can you tell me the amount of prepaid insurance since it is not given over here? What will be the amount of prepaid insurance? All of you try that. Try to get the amount for prepaid insurance. We have done it earlier. 900. I'll go with majority 600. 400. See, very simple it is. September to 6 September. months. हाँ, आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया है ऊपर? 1200 दिया है, राइट? इंश्योरेंस on top, right now, insurance on top is given as 1,200 rupees, right? And it has been paid till which date? For the year ended 30th September. For the year ended 30th September 2007. तो मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 06 को स्टार्ट हुआ होगा. उससे पहले कोई इंश्योरेंस था ही नहीं. 1 साल का पे किया. सितंबर तक 1 साल खत्म होता है, तो चालू कभी हुआ होगा? साल शुरू कभी हुआ होगा? 1 अक्टूबर 06 को स्टार्ट हुआ होगा. तो आपने यहाँ से इंश्योरेंस स्टार्ट किया, यहाँ से पॉलिसी लिया, यहाँ से पेमेंट शुरू की है. आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 07 को. तो करना था आपको कितने महीने का पे? सिर्फ 6 महीने का, लेकिन आपने 1 साल का पे कर दिया है 1200. तो कितना महीने का एक्स्ट्रा पे किया है यहाँ पे? 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया है. सिंपल. तो अगर 12 महीने का 1200 है, दिस इज 12 मंथ्स का 1200, तो 6 मंथ्स का कितना होता है? दैट इज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग. ओके, कैन यू टेल मी द 2 इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस? Minus from insurance and assets. How it is 600? All of you got that? करना था मार्च तक, लक्ष्य करना था पे मार्च तक. मेजोरिटी मीन्स इसके लिए नहीं.
पे करना था मार्च तक, कर दिया पे सितंबर तक। आता था तेरे को? अरे ये देखो लिखा हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। करना था सिर्फ मार्च तक, कर दिया सितंबर तक, 6 months एक्स्ट्रा, so that is prepaid. Or if you got that, hello, what if ये 30th सितंबर तक को पे करने के बदले आपने 31st जुलाई तक पे किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स? यहाँ पे 6 महीने का एक्स्ट्रा पे किया। अगर 31st जुलाई 07 होता तो 4 months का एक्स्ट्रा होता। गॉट इट? तो जुलाई टू जुलाई, वो आगे का साल में कुछ नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर ना, प्रीवियस ईयर में अज्यूम करने का जरूरत ये नहीं। जो 6 months अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके पहले के जो 6 months है, उसका कुछ तभी खरीद कभी इंश्योरेंस ही अगर नहीं, कंटिन्यूइंग बिजनेस रहा तो ईयरली चार्ज देंगे। ईयरली चार्ज में नहीं है, आपने बोला नेक्स्ट ईयर है, सीएमए और नेक्स्ट ईयर भी है 12th। ईयरली चार्ज जैसा कंसेप्ट नहीं है अभी। अभी अज्यूम करना है कि अक्टूबर से पहले इंश्योरेंस था ही, अभी स्टार्ट किया। सो यहाँ पे अगर 31st जुलाई होता तो इट वुड हैव बीन 4 months। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो 4 महीने, 12 महीने का 12 तो 4 महीने का 400। इन दैट केस जो लोग को 400 रुपया आंसर आ रहा था वो अभी आएगा। 31st जुलाई होता तो इट वुड हैव बीन 400। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, provide depreciation 10% on furniture and machinery is revalued at 24,000. कसं? Two effects of depre. Minus from assets and P&L debit. देखो, machinery is revalued at 24,000. So is the depreciation amount 24,000 or it is after depreciation? So machine I think on top was 25. So debris is I think 1,000 rupees. 24 से depreciate मत कर देना, बोलने का मतलब। I have seen students doing that. Okay, 25 minus 24, 1,000 रुपया कर दिया मशीन। क्या करेगा बिजनेस में जाके भगवान जाने। 25,000 का मशीन है, कितने से depreciate कर दिया है? 1,000। Outer column 24. Okay, don't depreciate it by 24,000. Next one. Provide interest on capital 5% and interest on drawings 12%. This is something new now. See, what is interest on capital and what is interest on drawings? The concept is very similar to your loan taken and loan given. Suppose business ने, ध्यान से समझना इसको, business ने ना 50,000 रुपए का लोन लिया है। business ने 50,000 का लोन लिया है, 50,000 का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। 50,000 का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। पूरा साल तक पड़ा हुआ था, शुरू से एंड तक लोन लेके रखा हुआ है। तो व्हाट इज द बिजनेस सपोज टू डू ऑन दिस? पे इंटरेस्ट। पे इंटरेस्ट तो आप करते हो, पता है, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, हिडन एडजस्टमेंट होता है, सीसीसी। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा बिजनेस को? 5,000, राइट? और फिर आप चेक करते हो कुछ पे किया है कि नहीं। तो सपोज कुछ भी पे नहीं किया है तो फुल 5,000 क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, राइट? एंड व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? एडेड टू इंटरेस्ट, एक P&L डेबिट, एड टू इंटरेस्ट इफ देयर इज एनी। यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो आप डायरेक्टली लिखोगे एंड लायबिलिटी। लाइबिलिटी में आप क्या कर सकते हो? एड टू लोन, एड टू लोन। ओके, ध्वनि भानुशाली भारी पड़ी। P&L डेबिट एंड लाइबिलिटी में एड टू लोन। दिस इज व्हाट यू डू, राइट? ₹200 पार्टी नहीं मिलेगी, वो चलेगा, इधर देना पड़ेगा। P&L बोर्ड पे देखो, लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, साइलेंस। इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। P&L डेबिट एंड लाइबिलिटी में एड टू
लोन. दिस यू ऑल गॉट. दिस इज व्हाट यू डू. अभी 5,000 रुपीज ये लोन का इंटरेस्ट अपने को किसको देना बाकी था? बाहर वाले को, जिससे लोन लिया था ना, उसको देना बाकी था ना, राइट? ये वाला इंटरेस्ट 5,000. P&L debit and add to loan in the liability part, outstanding. But इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिख रहा है वहां पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसा ही अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर वाले को पेएबल नहीं दिखाते, आप ओनर के कैपिटल पे पेएबल दिखाते हो. किस पे दिखाते हो? ओनर के कैपिटल पे पेएबल. सब कंसेप्ट वही है. ये सब में बताओ मेरे को, कैपिटल कितना है? 40,000. कैपिटल इज 40,000. हेलो, मिला आपको ऊपर? तो जैसे बिजनेस टेक्स अ लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो आउटसाइडर को इंटरेस्ट देना बाकी है ना. अच्छा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट. तो बिजनेस हैज टेकन अ लोन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइडर को पेएबल दिखाता है. कैपिटल भी बिजनेस का खुद का नहीं है, किसका है? ओनर का. So sometimes the business will make the owner or the business will make an arrangement for providing interest on capital. मतलब जैसे बाहर वाले को लोन पे इंटरेस्ट पेएबल दिखाते हो, वैसे ओनर का कैपिटल पे इंटरेस्ट पेएबल दिखाते हो. मतलब बिजनेस हैज टू पे दैट इंटरेस्ट टू ओनर. बिजनेस हैज टू पे दैट इंटरेस्ट टू. इसमें क्वेश्चन आ जाए, ये तो साला अपना ही बिजनेस है, अपना ही पैसा है, और खुद को कैसा इंटरेस्ट दे रहा है, काय को दे रहा है? देयर इज अ स्मॉल logic behind that, reason behind that. I'll tell you what it is. No, entity तो है, बिजनेसमैन अलग है. बट क्यों किया? तुम खुद का ही पैसा खुद को ही इंटरेस्ट के जैसा दिखा रहे है ना. अभी पहले कैपिटल देखो, 40,000 है. क्या रेट से इंटरेस्ट है? 5. कैपिटल पे 5%. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी हाउ मच? 40,000 पे 5% फॉर 12 months कितना होता है ये? 2,000 रुपीज. ये इंटरेस्ट कौन किसको देने वाला है? बिजनेस इज गोइंग टू पे टू ओनर. जैसे यहाँ पे बिजनेस इज गोइंग टू पे दैट लोन वाला, वैसे यहाँ पे बिजनेस इज गोइंग टू पे दिस इंटरेस्ट टू ओनर. इमेजिन ये लोन के जैसा ये जैसा लोन पे इंटरेस्ट पेबल है, वैसे मैं कैपिटल पे कर रहा हूँ. सेम लॉजिक आई एम अप्लाई. लाइबिलिटी है. अभी इसका दो इफेक्ट. अच्छा, कैलकुलेट चेक कंपेयर वही है. पेड तो कुछ दिखेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी पेड होगा ही नहीं आपका, तो हमेशा पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग होगा. फुल फॉर 2,000 इज आउटस्टैंडिंग. सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस 2,000? कैन यू गेस एंड टेल मी? Add to capital and P&L. ये क्या था? P&L डेबिट. तो ये भी P&L डेबिट. एंड ये क्या था? एड टू लोन. तो ये क्या हो जाएगा? एड टू कैपिटल. ओनर को देना बाकी. अब ये अरेंजमेंट क्यों किया हुआ है? Why has such an arrangement been done? It is mainly for the owner to see whether he is able to earn something more than the regular rate of interest. से FD का इंटरेस्ट 5% चल रहा है. FD का इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 5%. मैंने बिजनेस में 40,000 रुपीज डाला हुआ है. तो मिनिमम मेरे को 5% तो मिलना ही चाहिए ना, कि उससे भी कम मिलेगा तो चलेगा. उतना तो मिलना चाहिए, नहीं तो बिजनेस करके मतलब नहीं है. एफडी में ही डाल के रख दूं मैं पैसा. तो ओनर क्या करेगा? 40,000 रुपये पहले चेक करेगा, 5% तो मिल रहा है ना, वो P&L डेबिट में लिख देगा. डेबिट में एज एन एक्सपेंस माइनस कर देगा और कैपिटल में ऐड कर देगा. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली. प्रॉफिट भी आपका P&L डेबिट से कैपिटल में ऐड होता है ना. तो उससे पहले ही प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले वो इंटरेस्ट को P&L डेबिट में दिखा के ऐड कर देगा. वो एक एक्सपेंस के जैसा दिखाएगा. तो आपका प्रॉफिट क्या है? थोड़ा और कम हो जाए. तो बोलने का मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो मलाई मिल रही है ना, दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ओवर एंड अबाउट दैट 5% इज अर्निंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओनर को यहां पर दो चीजें मिलेंगी. एक इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और ऊपर से प्रॉफिट्स भी मिलेगा. तो वो ये जानने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई मिनिमम 5% तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर जो हो रहा है दैट इज एक्स्ट्रा
प्रॉफिट इज अर्निंग। अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जितना भी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट ही 1500 हो रहा है, उसका प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है, सपोज 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 2000, तो बिजनेस करके मतलब इन्वेस्ट कर दो, कहीं और एफडी में इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही अपना समझो, तुमने टोटल प्रॉफिट कमाया है 25,000, टोटल प्रॉफिट कमाया है 25, वो पीएनएल में कैसा मिलता है प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, तो वो 25 में ही ये 2000 रुपया आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे एज एन एक्सपेंस, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा अभी 23। मतलब क्या, ओनर ये भी 2000 ओनर को जा रहा है, ये भी 23 ओनर को ही जा रहा है, बट ओनर को मालूम है कि मेरे को मिनिमम 2000 तो मिल ही रहा है, मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूं उसके ऊपर कमा रहा हूं, समझ में आ रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी बिजनेस करते नहीं है, वो अपने ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आप कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, अपना जो टोटल प्रॉफिट है ना 25,000, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 2000 रुपया इंटरेस्ट और 23,000 रुपया फाइनल प्रॉफिट। ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया कि ओनर को पता चल जाए कि मिनिमम 5% तो वो बिजनेस में से कमा ही रहा है, प्रॉफिट जो होंगे उससे एक्स्ट्रा होंगे ना, उसके ऊपर होंगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हो। बात समझ में आ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा किसको, अल्टीमेटली ओनर को ही जाएगा। ये दिख रहा है हमने कैपिटल में ऐड किया हुआ है, जैसे प्रॉफिट पीएनएल डेबिट और ऐड टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट पीएनएल डेबिट एंड ऐड टू कैपिटल, ये भी वही है, पीएनएल डेबिट एंड ऐड टू कैपिटल, ओनर को ही जा रहा है, प्रॉफिट के जैसा ही है, प्रॉफिट का ही टुकड़ा है, खाली अरेंजमेंट इसके लिए बना के रखा कि मिनिमम पता चल जाए इतना बिजनेस में से छूट रहा है, इतना भी नहीं छूट रहा है तो मतलब नहीं है बिजनेस करने का। गॉट इट? बोल। I said the word inflation. और इसमें टेक्स केयर ऑफ दैट आल्सो, like actually it isn't interest, right? क्योंकि वो इन्फ्लेशन ही है, क्योंकि अगर 40,000 है तो नेक्स्ट ईयर फॉर 38,000 हो जाएगा पैसा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, हाँ, उसकी वैल्यू 38,000 हो जाएगी। बट वो ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट उसी में बिजनेस में ही पड़ा रहेगा उसका। आवाज नहीं होता है। हेलो, 4-5 लेक्चर थी बंद छे रिकॉर्डिंग में इन्फ्लेशन को टैकल करने का भी काम होता है, बट इसमें कैसा है, इंटरेस्ट है ना वो ऐड करके कैपिटल में रख के रखा रहे परमानेंट, तो वो टैकल करेगा इन्फ्लेशन, वो ड्रॉइंग्स में निकाल देगा पैसा।